Good morning to all students. This is Kalyan Singh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today we will start our subject Basic Mechanical Engineering. As we are seeing on the screen that the subject that we will study, that is Basic Mechanical Engineering. इसका कोड रहेगा स्टूडेंट्स 1FY307. Some student will study this subject in the first semester and the remaining students will study this subject in the second semester, which are not studying in this first semester. The credit of this subject is 2. Here, as per the university syllabus, 2 lecture will be given to you in per week. Maximum marks is 100. 20 is internal and 80 is external. The end term exam will be for 2 hours as we are seeing, and this is the syllabus as you are seeing. First segment contains the fundamental of the mechanical engineering, concept of thermal engineering, mechanical machine design, industrial engineering, manufacturing technology, steam boiler classification, and the types of boilers as we are seeing on the screen. Steam boiler classification and types of steam boilers and steam turbines, introduction and classification of power plants. In the second segment we will study about the pumps and ice engines. Pumps and ice engines के बारे में study करेंगे. Here we will classify the different type of pumps. We will classify the internal combustion engine. We will also study the main component of ice engine, working of ice engine and its component, और इसके components के बारे में हम study करेंगे. In the next segment we will study about the refrigeration and air conditioning. As we are seeing in this particular segment we will study about the introductory part and the classification, types of refrigeration systems, air conditioning systems and their applications. And next is the transmission of power, how we can transmit the power from one machine to another machine. The devices that we will study about the types of belts, rope drive, gears, that's it. And in the next segment number 5 we will study about the primary manufacturing processes. This is metal casting process, introduction to casting processes, patterns, molding, furnaces, metal forming processes, introduction to forging, rolling, extrusion, drawing, metal joining processes, introduction to various types of welding, gas cutting, brazing and soldering. This whole we will study in the primary manufacturing processes. And the last one is the engineering materials and heat treatment of steels. In this we will study about the different type of materials and their properties, and that's it. This is the whole syllabus that we will study during the basic mechanical engineering subjects. Now students, if we will start from the beginning, introduction to mechanical engineering. If we talk about the introductory part of this mechanical engineering, as we are seeing, if we are discussing the what is the basic part of the mechanical engineering, then I want to explain you कि mechanical engineering is one of the oldest branch of engineering which include the core understanding of mechanical engineering. इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांच मानी जाती है, जिसके अंदर हम कई सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, एज मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, मशीन डिज़ाइन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर ट्रांसमिशन and internal combustion engines. These are the different subjects that a mechanical engineer study during his BTech. तो बच्चों ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैकेनिक्स हुआ, डायनेमिक्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, मटेरियल साइंस हुआ, मशीन डिज़ाइन हुआ, RAC हुआ, पावर ट्रांसमिशन हुआ और इंटरनल कम्बसन इंजन हुआ. ये सारे सब्जेक्ट एक मैकेनिकल इंजीनियर ड्यूरिंग हिज बीटेक स्टडी करता है. तो अगर हम आगे चलते हैं इसमें, दिस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इवॉल्व during industrial revolution in Europe
in 18th century. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एसोसिएटेड विद द अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और भी अदर डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है बच्चों, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। तो दीज आर द अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स विच कम्स अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी ये सारे के सारे जो डिसिप्लिन्स हैं दैट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, ये सभी डिसिप्लिन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए मैकेनिकल इंजीनियर ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। एक मैकेनिकल इंजीनियर नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काम करता है, मैकेट्रॉनिक्स के फील्ड में भी वर्कआउट करता है, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल एट्सेट्रा। द कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर गिवन बिलो। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स स्टडी करेगा, एक स्टूडेंट्स बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर द सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके बारे में स्टडी करेगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में स्टडी करेगा। मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कंबशन इंजन, मशीन डिज़ाइन। नेक्स्ट वन इज़ द वाइब्रेशन, नॉइज एंड हार्डनेस। नेक्स्ट वन इज़ द ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज़ द हाइड्रोलिक मशीन्स। नेक्स्ट वन इज़ द कैड, कैम एंड सिम, और नेक्स्ट वन इज़ द रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स। देन दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट ए इंजीनियर विल स्टडी। ये सभी सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियर स्टडी करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, कि थर्मल इंजीनियरिंग का क्या बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर हम इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करें कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, तो बच्चों मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि थर्मल इंजीनियरिंग डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू हीट। यानी कि जो थर्मल इंजीनियरिंग है वो डील करती है, ठीक है, विद द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट से डील करती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वर्क। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, वर्क के बारे में पढ़ते हैं, और इन सभी की डीलिंग हम थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट डिस्क्राइब द वेरियस वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। इसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं कई सारी जो वेरियस वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में, देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, एंड देयर एफिशिएंसी, और उनकी एफिशिएंसी के बारे में। वी विल टॉक इन द थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। वेरियस कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग आर डिस्कस बिलो। कई सारे जो थर्मल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ए फिक्स्ड एरिया और रीजन और स्पेस इन विच डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड ए सिस्टम। तो बच्चों एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया, ठीक है, या एक कोई पर्टिकुलर रीजन जिसमें कई सारी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकती हैं, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर नीचे भी देख पा रहे हैं यहाँ पर आसानी से कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस। यह कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है जिसके अंदर कई सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंप्लीट हो सकती हैं। तो इट इज़ द रीजन वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मास टू बी स्टडीज। ये एक कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन होता है जहाँ पर एनर्जी और मास का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टडी हम करते हैं। एंड वी आर सीइंग बाय दिस डायग्राम, दिस इज ए डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन्स के अंदर का जो भी पार्ट है बच्चों दैट इज़ नोन एज सिस्टम, और डॉटेड लाइन के बाहर जो भी पार्ट है दैट इज़ नोन एज सराउंडिंग। और डॉटेड जो लाइन आपको दिखाई रही है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंड्री। और हम वन बाई वन एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस कंटेन्ड इन ए बाउंड्री इज नोन एज सिस्टम।
तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जो भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड है या गैस है दैट इज कंटेन्ड विद इन दिस बाउंड्री, दैट इज नोन एज ए सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द बाउंड्री। तो बेसिकली बाउंड्री क्या होती है, एक लेयर होती है इनक्लोजिंग द सिस्टम इज नोन एज ए बाउंड्री। यानी बाउंड्री बेसिकली क्या करती है, सिस्टम को सेपरेट करती है फ्रॉम इट सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग को सिस्टम से जो सेपरेट करता है दैट इज नोन एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं। द बाउंड्री मे बी फ्लेक्सिबल और रिजिड एज वी आर सीइंग। सपोज अगर हम एक रूम का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो रूम की जो वॉल होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है, जनरली आपने देखा होगा। तो जो रूम की वॉल रिजिड होती है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट कि इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है बच्चों, रिजिड है। बट अगर हम एक बैलून का एग्जांपल लेते हैं, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ए बैलून। तो बैलून के अंदर बेसिकली क्या है, अगर बैलून के अंदर हवा भरी हुई है बच्चों, तो क्या होगा, इफ़ वी विल प्रेस इट बाय अप्लाइंग ए फोर्स, अगर हम कोई फोर्स लगा के इस बैलून को प्रेस करेंगे चारों तरफ से, तो डेफिनेटली ये अपना शेप एंड साइज क्या कर लेगा बच्चों, चेंज कर लेगा। इस टाइप से अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं देन डेफिनेटली इट विल चेंज द शेप एंड साइज। देन वी विल से कि इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, आपकी बाउंड्री वो है बच्चों फ्लेक्सिबल। कैसी बाउंड्री है आपकी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। तो हम देख पाएंगे कि भाई जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है या फिर उसकी बाउंड्री रिजिड है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सराउंडिंग। तो सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है, सिस्टम के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट होल थिंग्स आर नोन एज सराउंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, ऑल द मैटर आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग। जितना भी मैटर बाउंड्री के बाहर होता है बच्चों उसको हम क्या नाम देते हैं, सराउंडिंग नाम देते हैं। और नेक्स्ट वन होता है बच्चों वर्किंग फ्लूइड। तो द वर्किंग फ्लूइड इज ए लिक्विड और गैस दैट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट एनर्जी इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कि कोई भी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो भी, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वो वर्किंग फ्लूइड कहलाता है अगर वो एब्जॉर्ब और ट्रांसमिशन का, एनर्जी ट्रांसमिशन का वर्क करता है पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है, ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये मास ऑफ द फ्यूल सप्लाई, येलो कलर में हम यहाँ से फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं। ये इसके बच्चों क्या है, वॉल्व में, जैसे ये इनलेट वॉल्व है और ये इसका क्या है, आउटलेट वॉल्व है, ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या आपका स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पार्क प्लग। ये बीच वाला पार्ट बेसिकली क्या है, ये स्पार्क प्लग है। और स्पार्क प्लग का जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है स्पार्क जनरेट करना। यानी जब भी आप इंजन के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, जब भी आप इंजन के अंदर येलो कलर का जो फ्यूल आपको दिखाई दे रहा है और ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से एयर लेंगे और एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर मिक्स होगा बच्चों, और यहाँ से स्पार्क प्लग से क्या होगी, आपकी फायरिंग होगी। तो स्पार्क प्लग से जब आपकी फायरिंग होगी तो जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो फ्यूल भरा हुआ है, ये दोस्तों क्या करेगा बच्चों, बर्न करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये बर्न करना स्टार्ट करेगा तो जो ऊपर वाला वाल्व है ये स्टॉप हो जाएगा और ये स्टॉप, दोनों वाल्व स्टॉप हो जाएंगे। और अब यहाँ पर ये फ्यूल बर्न कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से व्हाट विल हैपन कि जो भी फोर्स है वो अब पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगा। कहाँ पे अप्लाई होगा, पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगा, ड्यू टू विच ये जो पिस्टन है बच्चों ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पिस्टन से कनेक्टेड है आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये जो जिस कलर में आप देख पा रहे हैं ये कनेक्टिंग रॉड है हमारी पूरी की पूरी, ये पिस्टन से ऊपर वाली साइड से कनेक्टेड है। और नीचे ये जो आपकी पिस्टन कनेक्टिंग रॉड है ये नीचे क्रैंक से कनेक्टेड होती है फर्दर, और वहाँ पे क्रैंक केस होती है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस क्रैंक केस के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑयल भरा रहता है जो लुब्रिकेशन के काम में आता है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये इसकी सिस्टम की बाउंड्री दिखाई दे रही है। हम इस तरीके से इसको एज ए सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ इसके बाहर दिखाई दे रहा है वो क्या आपका सराउंडिंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।